ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ और ਦੁੱਧ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ आज तक ਅਸੀਂ 2 नंबर ਦੁੱਧ नहीं बेचे। ये भागने की तैयारी में थे, गाड़ी लगा के पकड़ा है। लैब रिपोर्ट्स के इसमें वेजिटेबल फैट है जो कि इन्होंने अडल्ट्रेशन की हुई है दूध के अंदर। ये वाला जो मिल्क आप देख रहे हैं ये सेफ्टी पैरामीटर्स पे फेल हुआ है। इसमें फॉर्मेलिन भी होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है होमोजेनाइज करने के लिए। इसको दूध कहना भी गलत है। ये कल भी पकड़ा, परसों भी पकड़ा, हर रोज पकड़ा जाता है। हमारे बच्चे पीते हैं, ये केमिकल पीते हैं। खुदकशी करने वाला हिसाब है, ये इनको कत्ल करने वाला हिसाब है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से एक बड़ी कारकर्दगी मंजर आम पर आ गई। 35 लीटर दूध जो है उसको ज़ाया किया जा रहा है। नाकिस कारकर्दगी, नाकिस दूध की वजह से यहाँ पर इन्होंने उस सप्लायर को भी पकड़ रखा है जिसने मुख्तलिफ दुकानों में दूध सप्लाई करता था, लोगों की जानों के साथ खेलता था। हम इसे जानते हैं कि इसके पीछे कौन सा गिरोह है जो लोगों की जानों के साथ खेलने पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि 35 लीटर दूध पकड़ा गया है, कौन है जो आपको सप्लाई करने पर भिजवाता है यहाँ पे? मैडम जी ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਨਾਕਿਸ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਕਿਸ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ और ਦੁੱਧ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਿਜਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁਆਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਧਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ਲਾਦਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਤੇ ਆਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਿਆ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੀਐਫਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਬਣੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨੇ ਹਾਲੀ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹੋ। 5-5 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਆ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪੀਐਫਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨਾਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਕਸ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲੱਗਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਚ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਦੁੱਧ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ खराब हो जाते। मेरे साथ यहाँ पे एएफएस मौजूद हैं, मिस सुंदस हैं, इनसे बात करते हैं कि मिस सुंदस का क्या कहना है, क्योंकि ये तो कभी भी नहीं मानेंगे कि दूध नाकिस है। इन्होंने लोगों के साथ तो इसी तरह से ही खेलना है। हम इनसे जानते हैं कि दूध में ऐसे कौन से केमिकल्स निकले हैं, क्या मसला था जो इनका 35 लीटर जो दूध है, 3500 लीटर दूध यहाँ पर पकड़ा और इसको नाले में बहाया जा रहा है। मिस मुझे ये बताएं कि ये तो मानने को तैयार नहीं है, आपने इसकी इनिशियली रिपोर्ट की है या इसको लेबोरेटरी फर्दर रिपोर्ट्स में भी भिजवाया? हमने इनको आशियाना रोड पे पकड़ा है, वहाँ पे ये भागने की मतलब तैयारी में थे। हमने पीछे इनको गाड़ी लगा के पकड़ा है। फिर हमें थोड़ा आइडिया हुआ कि दूध सेंसरी एवेल्यूशन की दूध की ना हमें, तो हमें थोड़ा फील हुआ कि इसका टेस्ट वगैरह नॉर्मल दूध जैसा नहीं है। उसके फर्दर एनालिसिस के लिए हम डीएफएल हेडक्वार्टर लैब में लेके गए ताकि इसका मज़ीद एनालिसिस हो सके। लैब रिपोर्ट्स के बाद ये हुआ कि इसमें वेजिटेबल फैट है जो कि इन्होंने अडल्ट्रेशन की हुई है दूध के अंदर। अभी तक इनके पीछे कोई इस तरह का बंदा आया जो इनको दूध देता है सप्लाई करने के लिए? ये ग्रो है पूरा? जी बिल्कुल ग्रो है। अभी ये खुद ही वो कह रहे हैं कि हम लोग, इन्होंने पहले ये कहा है कि ये ना एक ही दूध है, अब ये कह रहे हैं कि हमने डिफरेंट जगहों से वो किया है। मुझे जो पहले जो मैंने इनसे पूछा तो वो कह रहे थे मैडम एक ही दूध है हमारा, एक ही जगह से आया है, तो ये खुद ही सप्लाई कर रहे हैं और खुद ही लेके आ रहे हैं। आपको किसी कंप्लेन पे आपने इनको पकड़ा या फिर आपका रेकी हो रही थी, काफ़ी देर से आप इनको वॉच कर रहे थे?
हम लोग काफ़ी दिनों से इनको वॉच कर रहे थे, देख रहे थे, इनके पीछे थे, फिर आज ये पकड़े गए हैं। मुझे ज़रा से भी इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है कि पीएफए ने इनका दूध परचेज़ करके मंगवाया कुछ दिन पहले और उसको फिर बाकायदा लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया और इनको वक्फे से चेक किया क्या दूध में इसी तरह के केमिकल्स या ये मसाइल हैं, और आखिरकार अब इन्होंने जो है ये आपके हाथ जो हैं पकड़े गए। क्या इसमें सदाकत है? जी, इस तरह की चल रही हैं एक्टिविटीज़, हम खुद भी इन चीज़ों के इनके पीछे रह के कर रहे हैं। हम लोग इन पे नज़र रखी हुई है कि कहाँ से गाड़ी जा रही है, किन किन रास्तों से जा रही है, उसके बाद हम इनको देखते हैं, इनके एनालिसिस कर रहे हैं और ये फैब्रिकेटेड दूध आ रहा है इनका। तो फिर मेरे साथ इस टाइम डायरेक्टर ऑपरेशन सेंट्रल मौजूद हैं आसिफ इकबाल साहब। इनसे जानते हैं कि इस कारकर्दगी के बाद जो कुछ इन्होंने किया वो तो मानने को तैयार नहीं है कि उनका दूध नाकिस है। क्या अब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, क्या तफसीलात सामने आती हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप लोग कवरेज करते हैं और ये बहुत बड़ा पब्लिक काज है जिसके लिए आप लोग पीएफए के साथ खड़े। ये वाला जो मिल्क आप देख रहे हैं ये सेफ्टी पैरामीटर्स पे फेल हुआ है। प्राइमरीली जो मिल्क टेस्टिंग है उसके फूड एनालिसिस में दो तरह के क्वालिटी और सेफ्टी पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो जैसा कि आपको सेफ्टी से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये वो दूध है जो पीने से जो इंसान के वाइटल आर्गन्स हैं, जिस तरह से डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और इसको तो चूँकि इसमें फॉर्मेलिन भी होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है होमोजेनाइज करने के लिए, तो इसको दूध कहना भी गलत है। टेक्निकली जो हमारे फूड साइंटिस्ट हैं वो इस बात को एंडोर्स करते हैं कि ये दूध है ही नहीं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। तो सेक्शन 22 से जो पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट का कहता है कि इस क्वांटिटी में जो अगर डिस्कार्डेड सिंथेटिक मिल्क अगर होगा किसी के पास, वो प्रोड्यूस करेगा, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, एफआईआर होगी और फिर उसका जो कोर्ट का ट्रायल है उसके बाद उसकी जो सज़ा है उसको होगी। इस पर्टिकुलर केस में इनकी गाड़ी हमने इम्पाउंड की है, ड्राइवर जो हमें ट्रेसेबिलिटी दे रहा है, जो लोग इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस तरह से आपने अभी सुना कि ये दोनों गाड़ियाँ कसूर से आ रही थी, तो असल हमारा टारगेट उन तक पहुँचना है और जो इसके रूट काजेज़ हैं उनको एड्रेस करके उस माफिया को ख़त्म करना है, ताकि ये जो प्रैक्टिस है, ये जो पैसे बनाने की प्रैक्टिस जिसमें लोगों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। और डिटर्मिंड है पंजाब फूड अथॉरिटी, जनाब डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में, और ये एक्शंस मुसलसल कंटिन्यूस हैं। सर, इन्होंने क्या कोई लाइसेंस इशू करवाया होता है? दूध जो व्यापारी हैं कि डायरेक्टली ही ये जो है दूध सप्लाई कर देते हैं विदाउट एनी परमिशन? दूध की सेल के लिए अगर कोई शॉप दूध सेल कर रही है या कोई दूध प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत उसका लाइसेंस ज़रूरी है। ये चूँकि ट्रांसपोर्टेशन में हमने इनको इंटरसेप्ट करके पकड़ा है, इसलिए इनके खिलाफ, चूँकि ये दूध के जो एक फूड प्रोडक्ट है उसको डील कर रहे थे, तो उसको पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक इनके पीछे को माफिया है वो सामने आया? जी बिल्कुल, आपके इल्म में होगा कि पंजाब प्रोविंस में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में अब तक 10 के करीब ऐसे माफियाज अनर्थ हुए जो सिंथेटिक मिल्क की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे। एक सबसे बड़ा आपने सुना होगा बहावल नगर के एरिया में, जो एक फैक्ट्री के शेप में बड़े कमर्शियल लेवल पर 1 लाख पर डे सिंथेटिक मिल्क की प्रोडक्शन कर रहा था, उसको पंजाब फूड अथॉरिटी ने अनर्थ किया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। इसी तरह से साहिवाल, पाकपतन, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब फूड अथॉरिटी कार्रवाई कर रही है। और इस वक्त हमारी कैंपेन का फोकस जो है वो मिल्क सेफ्टी और मीट सेफ्टी है। सर, आए रोज़ इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, उस पर सख्ती से अभी तक कोई इक़दाम क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर आप 1 अगस्त से लेकर अब तक की जो पंजाब फूड अथॉरिटी की फोकस्ड ड्राइव है, जिसमें लाइव स्टॉक का डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है और जिस पे डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का बहुत एक्सटेंसिव इंटरेक्शन है मीडिया के साथ, अगर आप उसको देखें तो अब तक जो है 400 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी हैं। 10 लाख से ज़्यादा जो सिंथेटिक मिल्क है वो डिस्कार्ड हो चुका हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों को जो कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है उसको प्रॉपरली काउंटर करने के लिए प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेंथन किया है। ये जितना भी एविडेंस यहाँ से कलेक्ट होगा वो पुलिस के साथ हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर जो कंसर्न्ड है वो उस इन्वेस्टिगेशन का अब पार्ट है। गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई कर दिया है कि इसके चलान की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट नहीं करेगा, बल्कि उसके साथ हमारा जो पंजाब फूड अथॉरिटी का कंसर्न फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो भी उसका पार्ट होगा। उसका पर्पस सिर्फ यही है कि प्रोसिक्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि इनको कोर्ट से रिलीफ मिलने का कोई चांस ना हो। सर, मुझे बताएं कि क्या आपने इसकी रिपोर्ट्स क्रॉस चेक भी करवाई हैं अदर लैब से, या सिर्फ पीएफए ने इसको टेस्ट किया है? इसमें जैसा कि आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ गैजेट्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह की लैब टेस्टिंग होती है मिल्क को चेक करने के हवाले से। तो ये जो BR मीटर है, लैक्टोस्कैन से इनिशियल टेस्टिंग होती है, जिस तरह से हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर ने आपको बताया कि शी गॉट सस्पिशियस कि इसमें कुछ गलत है, तो सिर्फ उस इनिशियल रिपोर्ट पे या सेंसरी एवेल्यूशन पे रिलाय नहीं किया जाता, बल्कि बिटारोमीटर और इस तरह की जो दीगर सपोर्ट हमारे पास गर्बर मेथड के
दीगर लैब टेस्टिंग के प्रोसीजर्स हैं उनको अडॉप्ट करके एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद फिर डिसीजन लिया जाता है। आखिरी क्वेश्चन मेरा ये होगा कि किस इलाके में आपने ये दूध के ये जो कैंस हैं ये पकड़े, वो कौन सा इलाका है, वो कौन सी दुकानें हैं? क्योंकि अगर इस प्रोग्राम के ज़रिए उस इलाके में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो उन लोगों को अपने आप को बचाने में आसानी होगी। वो आप इस प्रोग्राम के ज़रिए आप बता दीजिए। हमारी जो मिल्क चेकिंग की कैंपेन है वो तो ऑब्वियसली आपके इल्म में होगा, और जिस तरह से सर डीजी साहब की डायरेक्शंस भी हैं वो अक्रॉस द प्रोविंस जारी है। लेकिन लाहौर की हद तक अगर हम बात करें तो ये वाली कार्रवाई हमारी गज्जू मता के इलाके में जो मिल्क चेकिंग की टीम है उन्होंने इन गाड़ियों को इंटरसेप्ट किया। ये कसूर से फिरोज़पुर रोड के ज़रिए एंटर हो रहे थे और इनको हम दोनों एंड से चेक कर रहे हैं। एक तो ये सप्लाई को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, दूसरा जो दुकानों पे ये सेल हो रहा है वहाँ से उनकी सैम्पलिंग करके वो भी हम रेगुलरली फूड हमारी जो लैब्स हैं उनको भिजवा रहे हैं। वहाँ पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अकॉर्डिंगली उन जो मिल्क सेल के पॉइंट्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जिनके इलाके से ये दूध जो है ये पकड़ा गया सप्लाई करते हुए, इनका क्या मौक़िफ़ है, ये क्या समझते हैं कि इस तरह की दुकानों से दूध परचेज़ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे बताइए कि आपके इलाके से दूध पकड़ा गया, आपका क्या मौक़िफ़ है, इस माफिया के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? पकड़ा गया, ये कल भी पकड़ा, परसों भी पकड़ा, हर रोज़ पकड़ा जाता है। मैं इसका मुस्तकिल हल होना चाहिए। ये हमारे बच्चे पीते हैं, ये केमिकल पीते हैं, ये खुदकशी करने वाला हिसाब है, ये इनको कत्ल करने वाला हिसाब है। मेरी मरियम नवाज़ से रिक्वेस्ट है कि जो भी बंदे हैं इसमें मुलव्वस हैं, ट्रक ड्राइवर हों, दूध सप्लाई वाले हों, इनको अरेस्ट किया जाए और डेयरी फार्म बनाए जाएं गवर्नमेंट के, और ये जितनी गाड़ियाँ हैं उनको दी जाएं, वो दूध सप्लाई करें घरों में। ये एक गैर मुज़रे दूध जिसका आप कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अवाम हालात की वजह से कम रुपीस में दूध लेके जाती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम अपने बच्चों को क्या पिला रहे हैं। उनके लिए ये एक दूध ही है, लेकिन ये एक मुज़रे सेहत और ये जहर है जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है ना दिन ब दिन बजाय उनकी ग्रोथ बनने के लिए वो दिन ब दिन हम उनको डॉक्टर के पास अजीब किस्म की बीमारियां और अजीब किस्म की उनके अंदर जो है ना वो कमियां आ रही हैं, और ये जुल्म हो रहा है एक दूध के नाम पे पर। अल्लाह के नूर को ये इस तरह कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना ज़्यादती हो रही है अवाम के साथ। और ख़ास करके लाहौर के अंदर तो लोगों को पता ही नहीं है कि हम ये दूध पी रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं। लोग इतना ध्यान ही नहीं करते इसके ऊपर। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के फॉर्म बनाए जाएं जहां पर इस तरह के सप्लायर आएँ, अपनी वहां पे प्रॉपर टेस्टिंग करवाएं, अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं और बाकायदा तौर पे वहां से लोग जो हैं दूध परचेज़ करें। इसी के साथ साथ आपने इंतज़ामिया की भी तमाम गुफ्तगू सुन ली, जिन्होंने यहाँ पर इनको पकड़ा। कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।